تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بقا و ابدیت میں منفرد ہے، جو مالک ہر عیب سے پاک اور سلام ہے، اسی کے لیے تسبیح و حمد ہے۔ اس نے کائنات کو بہترین نظام پر قائم کیا، میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور فراوان نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس شخص کی گواہی کی طرح جو کہے میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت برتے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل کرے آپ پر، آپ کے نیک معزز آل و اصحاب پر، تابعین پر، اور ان پر جو اچھی طرح ان کی پیروی کریں اور ان پر دائمی بہت زیادہ سلامتی نازل کرے۔ اما بعد، لوگوں میں تم کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تم پر رحم کرے، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، خلوت و جلوت میں اللہ سے ڈرو، رضامندی اور ناراضگی میں کلمہ حق پر کاربند رہو، محتاجگی اور مالداری میں میانہ روی کو لازم پکڑو، دوست اور دشمن کے معاملے میں عدل و انصاف کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ جنت کے سوا ہر نعمت و آسائش حقیر ہے، اور جہنم کے سوا ہر بلا عافیت ہے۔ جو اللہ کی تقسیم سے راضی ہوا وہ فوت شدہ چیزوں پر غمگین نہیں ہوگا، اور جو اپنی غلطی کو بھول گیا وہ دوسروں کی غلطی کو بڑا جانے گا۔ ادب بہترین میراث ہے، اور حسن اخلاق سب سے افضل ساتھی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلیوں سے ایک کنارہ ہو جائیں۔ مسلمانوں، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نصیحت لینے والوں کے لیے نصیحتیں اور ڈرنے والوں کے لیے تنبیہات ہیں۔ ان میں وہ مادہ ہے جو روشن دل کو جگاتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے صاحب بصیرت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ دل خواہشات کو زیر کر کے زندہ رہتے ہیں، غفلت سچی خشیت سے کافور ہوتی ہے، اور سستی کو بیداری کے تیر دور کرتے ہیں۔ کوتاہی کرنے والا جب اپنی کوتاہی کو یاد کرے گا تو شرمندہ ہوگا، چوکنا رہنے والا جب اپنے انجام کو سوچے گا تو مستعدی اور عزم سے کام لے گا۔ اللہ تم پر رحم کرے، تم اپنے دلوں کو وعد و نصیحت سے زندہ کرو، زجر و توبیخ والی باتوں سے انہیں نرم کرو اور حکمتوں سے انہیں روشن کرو۔ اگر تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے تو سنگین دن کے عذاب سے ڈرو، اور ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو نصیحت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی مذمت کی ہے اور ان کی غلط بات کو ان کے لیے ریکارڈ کر رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ آپ واعظ کہیں یا واعظ کہنے والوں میں سے نہ ہو، ہم پر یکساں ہے۔ یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے، اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ اور کچھ دوسرے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اور میں نے تمہیں نصیحت کی مگر تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو۔ بھائیو، ان لوگوں کے لیے مبارکبادی ہے جو وقت نکلنے سے پہلے غلطیوں کا تدارک کر لیں۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی لازم پکڑیں اور نیک اعمال کریں، اور مبارکبادی ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہوں کے بعد نیکیاں کریں۔ گھاٹا اور نقصان ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی آخرت کی بیش بہا چیز کو اپنی دنیا کی گھٹیا چیز کے بدلے بیچ دیں، اور افسوس ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے معاملے میں کوتاہی برتیں۔ یہ دنیا ایک سفر ہے، اس لیے تم ٹال مٹول سے بچو۔ دنوں کا گزرنا سب سے بڑا ناسے ہے، اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ موت گھات میں لگی ہوئی ہے اور عمر کا خاتمہ کرنے والی ہے۔ آنکھیں خشک ہیں اور نفس بھلائی میں مقابلہ آرائی کرنے سے بیزار ہیں۔ کیا بصیرتیں اندھی ہو گئی ہیں، یا مصائب کا خوف دور ہو گیا ہے؟ اللہ کے بندو، تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ رکھے، اس کی آسائش ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور تمہیں لمبی امید فریب زدہ نہ کرے کہ موت یقینی ہے۔ اللہ کی قسم، تم رسول اور رسول کو بھیجنے والی ذات اور قرآن اتارنے والی ذات کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے، اور ہر عمل کرنے والے کو اس کے کیے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔
उम्र असल उम्र असल सरमाया है और उसका जो हिस्सा गुजर चुका है उसका कोई बदल व मुतबादिल नहीं। आज अमल है, कोई हिसाब नहीं, और कल हिसाब होगा, कोई अमल नहीं। तुम कब्र और उसके हौलनाकियों के लिए, फरिश्ते और उसके सवालात के लिए तैयारी कर लो। पता नहीं किसे उसका नाम अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा और किसे उसका नाम अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाए। भाइयों, तुम तलाफी और गौर व फिक्र की हालत में हो। तुम अल्लाह ताला के फरमान पर गौर करो। अलबत्ता ये अपने बोझ ढोलेंगे और अपने बोझों के साथ ही और बोझ भी, और जो कुछ इफ्तरा परदाजियाँ कर रहे हैं उन सब की बाबत उनसे बाज पुरस की जाएगी। फिर उन लोगों के बारे में सोचो जिनके दिलों को अल्लाह ने गाफिल कर दिया, तो उन्होंने लोगों के हकूक़ हड़प लिए, उनके माल खा लिए और उनकी इज़्ज़त व आबरू पर बात करने लगे। सोशल मीडिया के साथ कुछ लोगों का तामुल देखो। जब वो छानबीन किए बगैर शाये करते हैं और तहक़ीक़ किए बगैर बात करते हैं और तस्दीक किए बगैर रिवायत करते हैं और जांच पड़ताल किए बगैर नकल करते हैं, अल्लाह तुम पर रहम करे। इन सब पर गौर करो कि हाल क्या होगा जब बंदा हिसाब के दिन अचानक अपने नाम आमाल में ऐसी गलतियां पाएगा जिन्हें उसने किया ही नहीं, और ऐसे गुनाह पाएगा जिनका उसने इर्तिकाब नहीं किया, मगर वो उनके इर्तिकाब का बोझ, उनकी तरवीज व इशाअत का बोझ, उन्हें सच मानने वालों का बोझ, उनके सुनने वालों का बोझ, उन्हें देखने वालों का बोझ ढोएगा। इसी तरह उन लोगों का बोझ भी ढोएगा जिन्हें उसने गुमराह किया, जिनकी अजीमत कमज़ोर की, जिन्हें हक़ से फेरा या जिनके लिए बातिल को खुशनुमा बनाया। क्या हाल होगा अल्लाह की पनाह अगर उसने फासिद को सालिह का लिबास और सालिह को फासिद का लिबास पहनाया होगा। इसी का नतीजा होगा कि क़यामत के दिन ये लोग अपने पूरे बोझ के साथ ही उनके बोझ के भी हिस्सेदार होंगे जिन्हें बेइल्मी से गुमराह करते रहे। देखो तुम कैसा बड़ा बोझ उठा रहे हैं, देखो तो कैसा बड़ा बोझ उठा रहे हैं। अल्लाह हमें और तुम्हें आफ़ियत इनायत करे। फ़ख्र व मुबाहात के फितनों और गुनाहों से बचो और गुरूर व तकब्बुर से और गरीबों के दिल तोड़ने से बचो। आखिरत का ये भला घर हम उन्हीं के लिए मुकर्रर कर देते हैं जो ज़मीन में ऊंचाई बढ़ाई और फ़ख्र नहीं करते, न फसाद की चाहत रखते हैं। परहेज़गारों के लिए निहायत उम्दा अंजाम है। मुसलमानों, बहुत से मर्द हैं जिनका अखलाक सोशल मीडिया पर बर्बाद हो चुका है। बहुत सी मुअज़्ज़ज़ औरतें हैं जिन्होंने अपने पर्दे और हया के मामले में कोताही बरती। वेबसाइटों पर बहुत से पुरअज़्म नज़र आने वाले हकीकत में लापरवाह होते हैं और ऐप पर बहुत से फयाद दिखने वाले छानबीन के वक्त नहायत बखील साबित होते हैं। मुसलमानों, साबित कदमी का पता आजमाइश के वक्त चलता है, जबकि आफ़ियत के वक्त सब साबित कदम नज़र आते हैं। रज़ामंदी बला मुसीबत के वक्त दिखती है और खुशहाली के वक्त सब राज़ी खुशी दिखते हैं। जब मतलब हासिल हो जाता है तो सब लोग पुरयकीन होते हैं, और जब उसमें ताख़ीर होती है तो बेचैन लोग ज़ाहिर होने लगते हैं। ज़ाहिर में सब लोग नेक हैं, मगर खलवतों में अल्लाह ही जानता है कि वो उसमें क्या कर रहे होते हैं। उन लोगों का क्या कहना जिनके अज़ाइम बुलंद हैं, जिनके दिल साफ़ सुथरे हैं और जिन्होंने अपने रब की शरीयत को लाजिम पकड़ा। इन जैसे लोगों की इक़्तिदा करो और इनके जैसे अमाल की पैरवी करो। अल्लाह के बंदे लोगों को खुश करने के लिए हक़ को ना छोड़ और बंदों की पसंद पाने के लिए रंग ना बदल। बंदे को दी जाने वाली सबसे बेहतर रोज़ी नफ्स का सुकून, अक्ल का नूर, दिल की पाकिज़गी और फ़िक्र की सलामती है। सबसे बेहतर गनीमत वालिदैन की दुआ और दोस्त का इखलास है। और मुखलिस भाई वो हैं जो तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारी कमी महसूस करें। जब तुम गफलत का शिकार हो तो तुम्हें मुतनब्बे करें और अपनी दुआओं में तुम्हें ना भूलें। भाइयों, बख़ील माल जमा करता है मगर उसका जमा करदा माल दूसरों को चला जाता है। गीबत करने वाला नेकियों के साथ आएगा और उसकी नेकियां दूसरों को चली जाएंगी। इताअत व इबादत की मशक्क़त चली जाएगी मगर उसका सवाब बाकी रह जाएगा, और मासियत की लज्जत मान पड़ जाएगी और उसकी सज़ा बाकी रह जाएगी। फ़ुदैल बिन इयाद रहमहुल्लाह कहा करते थे, तेरे नज़दीक गुनाह जिस कदर
हल्का होगा उसी कदर अल्लाह के नज़दीक वो संगीन होगा, और तेरे नज़दीक जिस कदर संगीन होगा अल्लाह के नज़दीक उसी कदर वो हल्का होगा। सआदत की अलामत यह है कि तू इताअत करे और आदम क़बूलियत से डरे, और बेतौफ़ीक़ी की अलामत यह है कि तू नाफरमानी करे और नजात की उम्मीद बांधे। दोस्तों, तुम में सबसे बेहतर वो है जो सबसे बेहतर अखलाक वाला है। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर है। लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श हो। दोस्तों में सबसे बेहतर वो है जो अपने दोस्त के लिए सबसे बेहतर हो। हमसाइयों में सबसे बेहतर वो है जो अपने हमसाइयों के लिए सबसे बेहतर हो। तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका कंधा नमाज में सबसे नरम हो। मुबारकबादी है उस शख्स के लिए जो अपने दिल में कोई कीना ना रखे, जिसके यहाँ दुश्मनी को राह ना मिले, उसकी मुलाकात खंदा पेशानी, उसकी गुफ्तगू सआदत और उसकी सोहबत गनीमत हो। मुबारकबादी है उस शख्स के लिए जो ये समझ ले कि उम्र चाहे जितनी लंबी हो जाए ये छोटी है, उसमें झगड़ों और इंतकाम के लिए कोई गुंजाइश नहीं। वो ख़ुद एहतसाबी में मशगूल हो, माफ़ात की तलाफ़ी करे और अपने भाइयों के साथ पाक दिल, साफ़ नफ्स, दरगुज़र, आफ़ियत, बेहतर बर्ताव, तगाफ़ुल और माफ़ी के साथ ज़िंदगी बसर करे। इसके बाद अल्लाह तुम पर रहम करे। नेक अमल के ज़रिए अपनी ज़ात के साथ एहसान करो, ख़र्च और सदका के ज़रिए अपने माल के साथ एहसान करो, और लग़ज़िशों से नज़रअंदाज करके अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ एहसान करो। भलाइयों की तरफ तेज़ गाम हो, ताअतों में मुनाफसत करो, नफ़ाबख्श चीज़ों के हरीस बनो, अल्लाह से मदद तलब करो और आजिज़ ना बनो। ताकतवर मोमिन अल्लाह के नज़दीक कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा महबूब और बेहतर है, और हर एक में खैर है। जब अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे हिदायत देता है, उसके लिए काफ़ी होता है और उसे बचाता है, और जिसे रुखसत होने पर यकीन है वो ज़्यादा सफ़र लेने में मशगूल होता है। यकीनन जो लोग अपने रब की हैबत से डरते हैं और जो अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं और जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते, और जो लोग देते हैं तो जो कुछ देते हैं और उनके दिल कपकपाते हैं कि वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं, यही हैं जो जल्दी जल्दी भलाइयाँ हासिल कर रहे हैं, और यही हैं जो उनकी तरफ दौड़ जाने वाले हैं। हम किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते, और हमारे पास ऐसी किताब है जो हक़ के साथ बोलती है, उनके ऊपर कुछ जुल्म ना किया जाएगा। तमाम इसके बाद अल्लाह ताला हमें और आपको इस कुरान और सुन्नत में बरकत दे। मैं ये बात कह रहा हूँ और अल्लाह से अपने लिए, आपके लिए और तमाम मुसलमानों के लिए मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप भी उससे मग़फ़िरत तलब करें, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने तमाम चीज़ों को अनोखे और मुहकम अंदाज में पैदा किया। उसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। जो उसकी हिदायत की पैरवी करे वो सआदत से माला माल होता है और शकावत से दो चार नहीं होता। मैं उसकी हम्द बयान करता हूँ, वह हमेशा शुक्र का मुस्तहिक है। मैं इबादत व बंदगी बजा लाते हुए गवाही देता हूँ कि दर हकीकत उस एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अखलाक में तमाम इंसानों से बेहतर और शक्ल व सूरत में सबसे कामिल हैं। अल्लाह दरूद नाजिल करे आप पर, आपके आल व असहाब पर जिन्होंने इस्लाम में सबकत हासिल की, ताबिईन पर और उनके नक्श कदम पर चलने वालों पर, और बहुत ज़्यादा दायमी और बाकी रहने वाली सलामती नाजिल करे। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने हमारी शीराज़ा बंदी की, हमारे अमन को ज़ाहिर किया, हमारा रिज़्क़ कुशादा किया और अपनी नेमतों से हमें ढाँप लिया। हमने जो कुछ उससे मांगा उसने हमें अता फ़रमाया। वही हमारा रब है, हम उसकी इबादत करते हैं, उसी के लिए नमाज़ पढ़ते और सजदा करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं और उसी पर भरोसा रखते हैं। उसका ज़िक्र बुलंद है, उसकी सना अज़ीम है, उसके नाम मुक़द्दस हैं। उसके सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं है, उसके सिवा कोई हमारा रब नहीं।
अज़ीज़ों, अपने मुआशरे की हिफाजत करो और अपनी बाहमी एकजहती का ख्याल रखो। उन चीज़ों से बचो जो तुम्हारी साफ़ सुथरी हालत को मुकद्दर करती हैं, क्योंकि घात में बैठे लोग बहुत हैं और लग़ज़शों की तलाश करने वाले भी कम नहीं। मुनाफिक गलतियों को फैलाता है और घात में बैठा शख्स ख़ताओं को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। तुम सम व ताअत को लाजिम पकड़ो, क्योंकि जो इताअत से निकल जाए और जमात से जुदा होकर मरे वो जाहिलियत की मौत मरता है। अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह तुम पर रहम करे और दुरूद व सलाम भेजो। हदिया में मिली रहमत और अता की गई नेमत, यानी अपने नबी और रसूल अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तुम्हारे रब ने अपनी मुहकम किताब में तुमको यही हुक्म दिया है, वो अपने कौल में सच्चा है। अल्लाह ने फरमाया, बेशक अल्लाह उसके फ़रिश्ते इस नबी पर दुरूद भेजते हैं। ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी पढ़ते रहा करो। ऐ अल्लाह, अपने बंदे और रसूल हमारे नबी मोहम्मद महबूब मुस्तफ़ा और नबी मुजतबा पर दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल फरमा। उनके पाकीज़ा व पाक बाज़ अहले बैत पर, उनके अज़वाज पर जो मोमिनों की माएँ हैं। ऐ अल्लाह, खुलाफा राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से राज़ी हो जा। तमाम सहाबा से और उनके बाद आने वाले ताबिईन से और उनसे भी जो क़यामत तक नेकी के साथ उनके नक्श कदम पर चलें, और उनके साथ हमसे भी अपने अफ़्व करम और एहसान से राज़ी हो जाए। अकरमुल अकरमीन, ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को ग़लबा अता फ़रमा और शिरक और मुशरिकीन को तो जलील व रुसवा कर, दीन के क़िले की हिफाजत कर, अपने मोमिन बंदों की मदद कर और सरकशों, मुल्हिदों और तमाम दीन के दुश्मनों को रुसवा कर। ऐ अल्लाह, अपने दीन, अपनी किताब और अपने नबी की सुन्नत और अपने नेक बंदों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह, हमें हमारे वतनों में अमन अता फ़रमा, हमारे रहनुमाओं और हुक्मरानों की इस्लाह फरमा और हमारे मामलात ऐसे लोगों के हाथ में दिए जो तुझसे डरते हों, परहेज़गार हों और तेरी रज़ा के पैरोकार हों। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह, हक़ और तौफ़ीक़ से हमारे सरबाह और हाकिम खादिम हरमैन शरीफ़ैन की मदद कर। उन्हें वो काम करने की तौफ़ीक़ दे जो तुझे पसंद हो और जिनसे तू राज़ी हो। उन्हें तक़वा और नेकी की तरफ फेर दे। उन्हें नेक मुशरिकार अता फ़रमा। उनके ज़रिए अपने दीन को ग़लबा अता कर। उन्हें इस्लाम और मुसलमानों की नुसरत का ज़रिया बना और उनके ज़रिए मुसलमानों को हक़ और हिदायत पर जमा कर दे। ऐ अल्लाह, उन्हें और उनके वली अहद को, उनके भाइयों को और मुआविनीन को हक़ और हिदायत और हर उस चीज़ की तौफ़ीक़ दे जिसमें बंदों और मुल्क की भलाई हो। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क हरमैन शरीफ़ैन के मुल्क ममलकत सऊदी अरबिया की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, उसे अपनी हिफाजत में रख और अपनी निगरानी और इनायत के साये में महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, उस पर अपना ईमान, अमन, खुशहाली और इस्तेकाम और उसकी क़ियादत की नेमत हमेशा कायम रख। ऐ अल्लाह, जो कोई उसके लिए बुराई का इरादा करे उसे अपनी ही मुसीबत में मुब्तला कर दे, उसकी चाल उसी पर उलट दे और उसकी तदबीर को उसके लिए तबाही बना दे। ऐ कवी व अज़ीज़, ऐ अल्लाह, हम उनके शर से तेरी पनाह चाहते हैं और उनके मुकाबले में तुझी को ढाल बनाते हैं। ऐ अल्लाह, उन्हें नामुराद कर दे, उनके दिलों में रौब डाल दे और हर तरह की बुराई उन्हीं की तरफ लौटा दे। ऐ अल्लाह, हमें महफूज रख और तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अकरमुल अकरमीन, ऐ अल्लाह, हमारे मुजाहिदीन और हमारे सिक्योरिटी अहलकारों की हिफाजत फरमा जो हमारी सरहदों और चौकियों पर तैनात हैं। ऐ अल्लाह, उन्हें अपनी मदद से मजबूत फरमा और अपनी नुसरत से सरफराज कर। ऐ अल्लाह, उनके निशाने और उनकी राय को दुरुस्त फरमा और उन्हें अपने और उनके दुश्मनों पर ग़लबा अता फरमा। कवी व अज़ीज़, ऐ अल्लाह, हमारे फ़िलिस्तीन के भाइयों के साथ अपनी नुसरत और मदद फरमा। ऐ अल्लाह, उन्हें अपनी मदद से मजबूत कर और अपनी ताइज़ से सरफराज कर। ऐ अल्लाह, उनकी कमज़ोरी पर रहम फरमा, उनके ज़ख्मों को भर दे और हर तरह की बुराई का दायरा उनके और तेरे दुश्मनों ही पर लौटा दे। ऐ कवी अज़ीज़, ऐ अल्लाह, मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा, उसे क़यामत के दिन तक सरबुलंद और महफूज रख अपने फ़ज़ल व करम से। अकरमुल अकरमीन, ऐ अल्लाह, मुसलमानों के हुक्मरानों को अपनी किताब और अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ दे। उन्हें अपने मोमिन बंदों के लिए रहमत बना और उनको हिदायत पर इकट्ठा कर दे। रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह, शरीरों के शर, फाजरों के मकर, दिन रात में आने वाली मुसीबत से हमें महफूज रख। ऐ अल्लाह, हमें तौबा और इनाबत की तौफ़ीक़ दे, हमारी कबूलियत के दरवाज़े खोल दे। ऐ अल्लाह, हमारी ताअतों और दुआओं को कबूल फरमा, हमारे अमाल की इस्लाह फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमें बख्श दे, हम पर रहम फरमा या अरहमर राहिमीन। अल्लाह, हमें दुनिया में भलाई दे। ऐ अल्लाह, हमें दुनिया में भलाई दे, आखिरत में भलाई अता फरमा और हमें जहन्नम के आज़ाब से बचा ले। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह इंसाफ़ और सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।